आज हमारे साथ कटिंग चाय में निखिल अग्रवाल सर है। सर holds twine charges as CEO for Foundation of Innovation and Research in Science and Technology. Is responsible for incubation and also CEO of IIT Artificial Intelligence and Innovation Driven Entrepreneurship Center at IIT Kanpur. He had organizations of CEO of C3I Hub, cybersecurity and cybersecurity of critical infrastructure between 2021 and 2022. Apart from that, we all know the wide range and the experience what Sir holds. We will be covering all the basic points what we have observed from your profile, sir. So let's start the question. Being CEO of SISC IIT Kanpur, how do you see the future of startup in India? And I request you to please let us know which specific sector is booming in this section. So the last 2 years, if you see, Akshay, the things have dramatically changed. We have seen new unicorns emerging. There was a time, I remember in 2021, where there was a startup becoming unicorn practically every week. In this year itself, close to 20 startups have become unicorn. Now unicorn, of course, is one part of the story of startup. The more important story of startup is now we have 77,000 startups registered with DPIIT, recognized by Government of India. And if you start counting the unrecognized startups, the number would be 100,000 plus startups. Now that's a pretty large number. Now what does it take bring us to the global position? Yes. We are, India today is the third largest startup nation in the world, right after US and China, which is quite phenomenal achievement considering that we are still a developing country, we are not a developed country. Economy wise, the things are booming. We have recently took over the UK to become the 5th largest economy. Yes. The growth is happening everywhere. देखो इंडिया को अगर मान के चलें आप, इंडिया अभी भी एग्री बहुल इकोनॉमी है। 22% अपना जीडीपी एग्री से आता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो अभी तक जो जितना भी अगर आप देखें, जितने हमारे किसान हैं या हमारी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं, काफ़ी हम पुराने ज़माने की प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते आए हैं। तो एग्रीटेक इज़ डेफिनेटली वन सेक्टर विच हैज़ टू बूम, देयर इज़ नो ऑप्शन. The one thing which every human has to do, he has to eat 3 times a day. So considering if you start comparing the farm produce per acreage in India and as compared to in Australia or US, we are far behind. US farm produce will be like much higher on per acreage than the Indian farm produce. So we have to go to that level. It is not the case that the US के अंदर ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ है या वहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी, उनके जो फर्टिलाइजर्स और उनको जो मेथड है काम करने का वो इतना अच्छा है कि उनको प्रोडक्शन काफ़ी हाई मिलता है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, खेत बट गए हैं, छोटे हो गए हैं, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता. तो हमें प्री प्रोड्यूस, पोस्ट प्रोड्यूस, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, हमें सब चीज़ में टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे कि हमारा एग्रीटेक सेटअप ग्रो कर सके. एक तो बड़ी बात वो है. Second, the sector which is more interesting would be health tech sector. Now, we are more than 100 crores Indian, we all know about it. Now, if you look at the availability of health services, which will be in single digit crores. आज भी आप अगर कानपुर जैसे शहर में भी अगर आप पूछे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है, तो शायद नाम बताना मुश्किल है. आज भी जो कानपुर इतना बड़ा शहर है, 60-70 लाख पॉपुलेशन है, अगर कोई यहाँ पर क्रिटिकल इमरजेंसी आती है तो उसको लखनऊ जाना पड़ता है, लखनऊ में इलाज ना हो तो उसको दिल्ली जाना पड़ता है. नाउ इफ यू लुक एट बिटवीन even just 500 kilometers between Delhi and Kanpur, you cannot name 3 good hospitals which are worthy going. Now imagine that situation is even worse when you go to the villages. तो हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि किस तरीके से डॉक्टर को, अब बहुत आसान लगता है कि सरकार को हम कहते हैं कि डॉक्टर बनाइए, पर डॉक्टर को बनने में 10 साल लगते हैं. अगर आज भी हमने 50,000 लोग भर्ती कर लिए डॉक्टर की MBBS के अंदर, तो 10 years for them to come up, by the time our population is grown. भाई पॉपुलेशन अगर आप इंडिया का ग्रोथ रेट देखें आज, तो करीब 50,000 लोग पर डे भारत में ऐड होते हैं. उनको अगर हम डॉक्टर्स का पर 1000 के हिसाब से देखें
कि कितने सारे डॉक्टर्स हमको चाहिए, तो नेचुरली देयर इज नो ट्रेडिशनल वे ऑफ रिजॉल्विंग द हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया। इसी तरीके से अगर किसी भी आप बात करते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी हर क्षेत्र में है, क्योंकि मैं आपको हर क्षेत्र का कोई ना कोई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, चाहे वो कपड़े की बात करें आप कहें, चाहे वो खाने की बात करें, चाहे वो आप एंटरटेनमेंट की बात करें, चाहे वो आप लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, हर क्षेत्र के अंदर भारत क्योंकि इतना बड़ा देश है, अपनी डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है कि हर क्षेत्र के अंदर देयर इज अ स्कोप टू इनोवेशन। So, मतलब being a startup from agriculture sector, we are also from agri-tech section. So हम थोड़ा सा टारगेट करेंगे agri-tech पे, ज़्यादा biased होंगे वो just next question we will be targeting toward agri-tech. How do you see the future of agri-tech innovation specifically in India? देखिए सबसे बड़ी बात है जो हमारा किसान आज भी बहुत गरीब है, तो अगर हमको टेक्नोलॉजी नहीं लेके आते हैं तो सबसे बड़ी किसान के पास तकलीफ क्या होती है, किसान को पैसे नहीं देने। आज भी फार्मर सुसाइड इंडिया में रैम्पेंट है, महाराष्ट्र का फार्मर सुसाइड ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, लेकिन फार्मर सुसाइड की तकलीफ करीब करीब हर प्रदेश के अंदर है। जो भी सर मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एज पर डाटा एनसीआरबी का है कि पर डे एटलीस्ट 10 या 12 फार्मर सुसाइड करता है। मतलब इट्स अ शेम ऑफ द सोसाइटी कि जो आदमी हमको खाना खिला रहा है, अपने फार्म में प्रोड्यूस करके एग्रीकल्चर कर रहा है, वही अपने बच्चे नहीं पाल पा रहा है, और उसको वो लोन में दबाया जा रहा है, या उसके पास कुछ काम करने को नहीं है, या उसकी ज़मीनें छिन गई हैं, उसको अल्टीमेटली 10 से 12 फार्मर्स अगर हर रोज के हिसाब से सुसाइड कर रहे हैं तो इट्स सेम सिचुएशन फॉर अस। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि हमको वी हैव टू फाइंड ए मैकेनिज्म कि जो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज हो, अफोर्डेबल मैकेनिज्म हो, या तो हम कोलैबोरेशन ऐसा बनाएं कि जो छोटे फार्मर हैं वो आपस में मिलकर एक साथ काम कर सकें, उससे सबका भला हो। अपने पुराने जब मुझे याद है हम जो छोटे थे तो हम लोग एक कहानी सुनते थे कि एक पिताजी थे जो कि मृत्युशैया में थे, वो अपने लड़कों को बुलाते हैं और एक लकड़ी ले लेते हैं और वो दो बोतल तोड़ जाती है, बोलते हैं सब लकड़ियों को जोड़ कर देते हैं, तब तोड़ो नहीं टूटी। तो इसी तरह से पावर ऑफ टुगेदरनेस, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी हैव मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप हैज टू वर्क इज दैट हाउ यू ब्रिंग द पावर ऑफ टुगेदरनेस, हाउ टू पावर ऑफ कोलैबोरेशन अमंग द फार्मर्स। गवर्नमेंट चाहे कितनी भी पॉलिसीज ले आए, जो आपस में लड़ाई झगड़ा फार्मर्स का वो बंद करना पड़ेगा, इसके लिए हमको भी एफर्ट करना पड़ेगा, उनको भी एफर्ट करना पड़ेगा, और तभी जो हमने बोला आज देखिए अमेरिका के अंदर फार्म सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि हजारों एकड़ों में काम होता है, वहाँ पर एक कॉर्पोरेट के पास या एक कंपनी के पास या एक फार्मर के पास हजारों एकड़ जमीन है, तो अपने हिसाब से उसका पूरा प्लानिंग करता है। यहाँ पर छोटे फार्मर का किस बार आधा एकड़, किस बार 1 एकड़, किस बार 5 बीघे, किस बार 10 बीघे, उसमें वो बेचारा करेगा क्या? तो वी हैव टू फाइंड सम मैकेनिज्म व्हिच कैन वर्क इन इंडिया, क्योंकि जो यूएस की टेक्नोलॉजीज है, यूएस की मैकेनिज्म है, वो इंडिया में नहीं चलेगी। दूसरा हमको ये करना पड़ेगा कि जो फार्मर का जो प्रोड्यूस है उसको बढ़ाना कैसे है, क्योंकि एक तो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कम है, तो छोटा होने की वजह से वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगा नहीं सकता, अच्छे फर्टिलाइजर डाल सकता, अच्छे सीड्स उसके पास एक्सेस नहीं है, तो वो कैसे प्रोड्यूस बढ़ाए जिससे उसकी इनकम को बढ़ावा मिले। और ऐसे क्या हम काम कर सकते हैं जो फार्मर के साथ मिलकर कि उसकी इनकम में सिर्फ फार्म के अलावा इनकम में इजाफा हो। फार्मर को द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर, हम लोग बात करते हैं हमारे पास स्किल लेबर नहीं है, स्किल लोग नहीं है, कोई हमें सामान बनाने के लिए चाहिए, कुछ चाहिए, तो क्या हम फार्मर और उसकी फैमिली को ऐसा स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उसकी साइड इनकम शुरू हो जाए। वैल्यू एडिशन ही सिखाते हैं फार्मर को, उसी से वैल्यू एडिशन सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ में गेहूँ का आटा बनाया, मशरूम की फार्मिंग करा लिया, और मशरूम को सुखवा के तो मशरूम का न्यूट्रिएंट है उसको ऐसे पाउडर, मशरूम का पाउडर ले लिया, आटे में मिक्स किया, तो वो कई गुना ज़्यादा रेट में बिक रहा है। और अगर फार्मर को ही आइडेंटिफाई करा दे कि नॉर्मल वीट भी आप कर रहे हो, ब्लैक वीट भी समय मार्केट में बढ़िया चल रहा है, शुगर फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आयरन जिंक कई गुना जाता है। अमेजोन पे सर चेक करते हैं तो 168 रुपये किलो बिकता है ब्लैक वीट का फ्लोर, और नॉर्मल वाला 35 रुपये किलो। सेम इनपुट कॉस्ट है, अगर फार्मर थोड़ा सा भी ये अवेयर हो जाए तो उनके लिए अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा उसके लिए। बिल्कुल सही बात करी आपने। जैसे फार्मर ज़्यादातर इंडिया में क्या करते हैं, इंडिया में सीजनल फार्मिंग है, तो एक सीजन के बाद फार्म खाली पड़ा रहता है क्योंकि उसको जानकारी भी नहीं है, उसको एक्सेस भी नहीं है, उसको वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करता रहा है। तो एजुकेशन
उनको स्किल डेवलप करना, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना और उनकी एजुकेशन को आगे बढ़ाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है और इसका मुझे लगता है कि स्टार्टअप उसमें रोल प्ले कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपकी बुक से रिलेटेड हमने शॉर्ट लिस्ट किया था। व्हाट वुड यू लाइक टू गिव अ मैसेज टू रूरल एंटरप्रेन्योर? प्लीज रिफर योर बुक स्टार्टअप मास्टर क्लास व्हिच गिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर अ स्टार्टअप टू वर्क इन। देखिए, रूरल एंटरप्रेन्योर्स have a great opportunity for, because India still lives in the rural. India does not live in urban. So whether related to solar, whether related to farm, whether related to education, whether related to health, you can do n number of things. Now I'll give you a very interesting example. I remember many years back, I went to Ranchi. Now from 100 km from Ranchi, there was a Naxalite infested area, and I went there, and I met an entrepreneur who is able to provide electricity in a form of solar lamps to every home. Now the deal was that there is a local NGO which has given solar lamps to this entrepreneur. Now he has a big solar charging station. Every morning when the farmer goes to the field, he drops the lamp to the local entrepreneur, and local entrepreneur during the day charge the solar lamp, and he charge 2 rupees only. Now there were close to 100 lamps coming every day, so that means this entrepreneur was making 200 rupees. Now in a remote location like a Ranchi, away from Ranchi, you can understand 200 rupees is good enough. When the farmer comes back with his family and in night, because the hut construction is such that there is no light, and if you burn the carbon waste, there is a lot of smoke and other things. Now the farmer is able to access to the light, to the electricity. For a few hours, the kids can study, he can do his work, he can enjoy entertainment. And now what I learned, that was many years back, this was there. So there was the empowerment of the one local entrepreneur was happening. By using simple solar lamp, he is able to earn the money and also able to provide the electricity. Now what I learned, because still the usage of mobile has increased. Now this same entrepreneur has started the mobile charging station. So when the farmer goes to or in the night, it can give the mobile phone. You may not have electricity at your home, but you may have a mobile phone with you. So that has become a primary mode of communication and entertainment. So you can give the mobile phone to this charging station and it can charge. So same way, there is just one example you can show that a farmer can, entrepreneur in the rural India can become self-sufficient. You have to find new ways, because everywhere somewhere you require ration, somewhere you require education, somewhere you require health services, somewhere you require information to be disseminated, somewhere you may be acting as a middle agent where you can bring goods or clothes and other things from the urban cities and bring it to the villages. Number of ways rural economy can flourish. आज ही मैं विदेश यात्रा काफ़ी करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि कंफर्टेबल लिविंग, आज किसी भी आप न्यूयॉर्क में चले जाइए, शिकागो में चले जाइए, लंदन में चले जाइए, जो बड़े लोग हैं वो आज गांव में रहना शुरू कर दिया है। वो लंदन से 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर जाके गांव में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल लिविंग है, वहाँ ज़्यादा बड़े घर हैं, लाइफ अच्छी है। उनके गांव थोड़े बेहतर हैं, मैं मान सकता हूँ, वहाँ क्योंकि बेसिक नेसेसिटी मिलती है। पर क्या हम अपने गाँव को उतना बेहतर बना सकते हैं कि हम लोग शहर छोड़कर गाड़ी में बैठ के 25-50 किलोमीटर दूर जाएं और वहाँ आराम से रहें और अच्छी ताज़ी हवा खाएं? This is the opportunity that we should look out, and that's the message to the rural entrepreneurs. So, sir, last question हम cover करते हैं. Please let me know what is your expectation from LCV, and where do you want to see our company in upcoming 5 years? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने मोनसांटो का नाम सुना था, तो मेरा LCV से उतनी ही उम्मीद है कि क्या भारत के मोनसांटो बन सकते हैं? We will try, sir. बाकी कोशिश हम लोग करते हैं। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाइए और ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करिए। स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। और सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि फोकस लूज नहीं करना है अपने कस्टमर को बेस्ट सपोर्ट देना है और ऑनेस्टली इस काम को आगे बढ़ाना है, अपनी टेक्नोलॉजी विश्वास रखना है और नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहना है। और अप एंड डाउन आएंगे, कभी नुकसान होगा, फायदा होगा, बिजनेस है तो बिजनेस में अप एंड डाउन चलता रहता है, वो अलग बात है, पर हिम्मत नहीं हारनी है और अपना गोल साफ रखना है कि हमको भारत
ऐसा एक दिन आए कि ये एलसीबी का फर्टिलाइजर जाके अमेरिका में बिके, बल्कि मोनसेंटो का और उसके जो फर्टिलाइजर वो हम यहाँ लेके लाए। ऐसा हमें दिन देखना है और उस चीज़ का मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट एनी मैसेज फॉर द फाउंडर्स हु बिलोंग टू द रूरल इंडिया, जो आज हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटी से हम भी आते हैं। गोरखपुर के पास कुशीनगर पड़ता है, कुशीनगर से कई 28 किलोमीटर दूर गांव में मेरा घर है, जहाँ पे अभी भी अच्छी रोड नहीं जाती है। वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया कवरेज देख के और हम लोग को भी देख के लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं टुवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं जहाँ से हूँ हमारा कोई भी रेफरेंस नहीं था, मैं आईटी तक पहुँच सकता था, बट आप लोग के हेल्प से और मतलब जो एक आई है आप लोगों का कि सोशल मीडिया के थ्रू या जिसके थ्रू आप कोई भी अगर कैपेबल है तो यहाँ तक पहुँच सकता है। तो फॉर व्हाट यू विल लाइक टू से टू द स्टूडेंट जो कि सोच रहे हैं कि कैसे वो आईटी तक पहुँचे? देखिए, आईआईटी के अंदर आज भी अगर आप स्टूडेंट्स को भी देखेंगे तो मेनली रूरल इंडिया बहुल ही है। हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते स्टूडेंट में कि वो दिल्ली कर्नाटक से आया है या फिर वो गोरखपुर से आया है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में पास होना है और यहाँ ऐसे आना है। इसी तरीके से हम एंटरप्रेन्योर्स में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते। कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई तमिल बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो टैलेंट है, टैलेंट किसी का गुलाम नहीं है, किसी शहर का, किसी डायनेस्टी का या किसी के माँ बाप का गुलाम नहीं है टैलेंट। हम लोग टैलेंट की इज्जत करते हैं और टैलेंट अगर आप में है, अगर आप में मेरिट है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो मेरा यही कहना है सारे रूरल एंटरप्रेन्योर से, आप रूरल है अर्बन है, ये डिस्क्रिमिनेशन भी छोड़ दीजिए। ये डिस्क्रिमिनेशन हिंदू मुस्लिम जैसा होगा कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ये क्या मतलब हुआ? आप भारतीय हैं, आप में करने की कोई इच्छा है तो हम आपके साथ हैं। आप चाहे रूरल इंडिया रहते हैं, आप अर्बन इंडिया रहते हैं, आपकी चॉइस है, आप जहाँ रहना चाहें। तो मैं तो रूरल इंडिया शिफ्ट होना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा रूरल इंडिया को थोड़ा जैसे मैंने बताया है कि एमिनिटीज मिल जाएं, थोड़ा आपको सड़क अच्छी हो जाए, अच्छी खुली हवा में रहेंगे, ताजी फल सब्जी खाएंगे, क्या जरूरत है शहरों में छोटे से घरों में रहने की? तो अर्बन इंडिया रूरल शिफ्ट होना चाहता है उसी तरीके से जैसे रूरल इंडिया अर्बन आना चाहता है। ये बात आप मान के चलिए। तो अर्बन और रूरल में कोई फर्क नहीं है। अभी आजकल मोबाइल फोन है, आपके पास भी वो व्हाट्सएप है जो मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास जो व्हाट्सएप है वही मोदी जी के पास व्हाट्सएप है, कोई फर्क नहीं है। सबके पास वही चीज़ें हैं, वही टेक्नोलॉजी है। तो बस सबके पास एक्सेस है। टैलेंट होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। हम आपके साथ करें। Thank you so much, sir, for your valuable time. Thank you so much.